بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے کے ساتھ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ میں ہوں صدف علی خان۔ اور اسپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ کورونا پر قومی پالیسی اپنائی، تمام فیصلے صوبوں کی مشاورت سے کیے، مگر بدقسمتی سے سندھ نے قومی معاملے کو سیاست کی نظر کر دیا۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ چینی بحران کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی میں صحافیوں سے گفتگو۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ملک کی تاریخ کا بہترین بلدیاتی نظام لا رہے ہیں۔ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی سے گورننس کا نظام بہتر ہوگا۔ فنڈز براہ راست ولیج کونسل تک جائیں گے۔ 18ویں ترمیم میں بہت سی چیزیں جلدی میں ڈالی گئی تھیں۔ NFC ایوارڈ میں کچھ چیزیں غلط ہیں جن پر مشاورت کی ضرورت ہے۔ صوبوں میں پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے ٹیلی میٹری نظام کو یقینی بنائیں گے وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان کا کراچی میں مصروف دن۔ تحریک انصاف کے ارکان سندھ اسمبلی، اتحادی جماعتوں کے ارکان اسمبلی اور MQM وفد سے الگ الگ ملاقات۔ پارٹی امور، ملک کی سیاسی اور کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو۔ PTI اور اتحادی جماعتوں کا مشترکہ ایجنڈا کرپشن کا خاتمہ، غربت میں کمی اور عوامی خدمت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان کا لاڑکانہ میں احساس ایمرجنسی کیش ڈسٹریبیوشن سینٹر کا دورہ۔ سینٹر پر موجود مزدوروں اور دہاڑی دار افراد سے بات چیت۔ پروگرام کے تحت سندھ میں 60 ارب روپے تقسیم، 50 لاکھ خاندانوں کو احساس کیش مہیا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق احساس کیش پروگرام میں سندھ کا حصہ 22% سے بڑھا کر 31% کر دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، قومی اور خطے کی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ۔ کرونا وائرس، ٹڈی دل اور انسداد پولیو مہم کے لیے فوج کے تعاون پر گفتگو۔ جارحانہ عزائم، معصوم کشمیریوں کو نشانہ بنانے اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت پر بھارت کو بے نقاب کرنے کا عزم۔ افغان امن عمل کے لیے مغربی سرحد پر مثبت اثرات پر اظہار اطمینان۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اپنے اولین چہرے سے محروم ہو گیا۔ مقبول ترین TV میزبان، فلم سٹار اور صداکار طارق عزیز 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر اطلاعات اور دیگر شخصیات کا طارق عزیز کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مرحوم کو لاہور میں سپرد خاطر کیا گیا۔ PTV انتظامیہ کی جانب سے قبر پر پھول چڑھائے گئے۔ قومی اسمبلی اجلاس، بجٹ 2020 اور 21 پر عام بحث۔ بجٹ میں سماجی شعبے اور معاشرے کے کمزور طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کثیر رقم مختص کی۔ کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ حکومتی ارکان کا موقف۔ حکومت بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کے لیے مزید رقم مختص کرنے اور عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اپوزیشن ارکان۔ صوبہ سندھ کا آئندہ مالی سال کا 12 ارب 41 ارب روپے سے زائد کا مالیاتی بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی تجویز۔ انتہائی مشکل حالات میں متوازن بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ۔
मुल्क भर में कोरोना केसेस का ग्राफ बुलंद। 24 घंटे के दौरान 5,839 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,56,760 तक जा पहुंची। मजीद 136 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 2,975 जाँ बहक, 58,437 सेहतियाब। वजारत सेहत और WHO के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान आलमी इदारे सेहत की यूनिवर्सिटी यूनिटी स्टडी में शामिल। जुलाई के आखिर तक पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से यूनिटी स्टडी के नताइज हासिल होंगे, जिसके तहत आइंदा का प्लान और पॉलिसियां अपनाई जाएंगी। NCOC में रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की मुश्किलात का इदराक है। एक महीने में बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हवाई अड्डों पर तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना अलामात वाले मुसाफिरों को करंतना किया जाएगा। मुआविनीन खुसूसी मोईद यूसुफ और जुल्फिकार अब्बास बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय जेलों में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की जिंदगियों को सख्त खतरात लाहक हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इजहार तशवीश। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 83,39,000 से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 4.5 लाख के करीब। 43,63,000 से ज्यादा सेहतियाब। अमरीका में 22,21,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 1,19,000 से ज्यादा जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में इंसदाद टिड्डी दल मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। महकमा ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पाक फौज की मुश्तरका टीमों का मुतासरा अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन। टिड्डी दल के मौसर तदारुक के लिए हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से स्प्रे। और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का पहला ऑनलाइन बॉक्सिंग टूर्नामेंट। बॉक्सर्स का जोश व खरोश दीदनी। ऑनलाइन फिटनेस एंड शैडो बॉक्सिंग टूर्नामेंट की 3 कैटेगरीज में 2000 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक। ऑनलाइन टूर्नामेंट 22 जुलाई तक जारी रहेगा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। बढ़ने की खबरों की तफसीलात की तरफ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने कोरोना के मामले पर कौमी पॉलिसी अपनाई और इसमें पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखा। ताहम सिंध में इस मामले पर सियासत की गई। 18वीं तरमीम में बाज़ चीजें जल्दबाजी में की गईं जिन पर बहस की जरूरत है। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी बहरान के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तफसीलात जानते हैं रियाज बरकी से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना के मामले पर उनकी हुकूमत ने तमाम सूबों के साथ मसावी सलूक किया। ताहम बदकिस्मती से सिंध में इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं। NCC की मीटिंग हुई है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर हैं। हमने बैठ के कंसेंसस से फैसला किया। उसके 1 घंटे के बाद जाके टीवी पे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के वजीर कुछ और ही बातें कर रहे हैं कि सेंटर ने हमारे से ये कर दिया, वो कर दिया। यानी एक एक फैसला हमने चला, सारे सूबों को ऑन बोर्ड लेके चले। मुराद अली शाह वो मानते हैं बात कंसेंसस, बाद में जाके बिलावल कोई और ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया भर में अच्छे नज़्म नस्क वाले मुल्कों और शहरों में एक चीज मुश्तरक है कि वहाँ इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए गए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का मकामी हुकूमतों का निज़ाम पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन निज़ाम होगा। विलेज काउंसिल को नीचे फिर एम्पावर किया। प्रोविंशियल फाइनेंस बोर्डों का डायरेक्ट पैसा
किसी के थ्रू नहीं जाएगा, डायरेक्ट विलेज काउंसिल्स को जाएगा। शहरों का डायरेक्ट सारा शहर इलेक्ट करेगा अपना नाज़िम, और वही तहसील में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। एक तरफ ग्रास रूट पे भी पहुंच जाएगा पैसा डायरेक्ट, दूसरी तरफ जो शहर होंगे वो भी डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए होंगे। एक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 18वीं तरमीम के बायस वफाक को मुश्किलात का सामना है जिन पर बहस करने की जरूरत है। NFC अवार्ड जो है उसके अंदर एक एनॉमली है, सूबों को चला जाता है 65%। तो शुरू ही होता है फेडरेशन 700 अरब रुपए के खसारे से, तो सारा जो फेडरल बजट पर बनता है वो सारे कर्जे लेके बनता है। ये बिल्कुल एक अनफीजिबल है, ये कोई दुनिया के अंदर ऐसा बजट नहीं बनता। जिन्होंने भी ये शुरू किया था जब भी 80th अमेंडमेंट, उन्होंने पूरी तरह सोचा ही नहीं कि ये कैसे, कौन सी दुनिया में किस तरह का सिस्टम चल सकता है। इसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत है, रिव्यू की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि वो चीनी बहरान के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ये मेरा वादा है इस कौम के साथ कि आखिरी हद के ऊपर जाएंगे कि हम इनको अब एक्सपोज करेंगे, इनसे फाइन्स करवाएंगे, इनसे पैसे लेंगे, इन्होंने जो किसानों से पैसे लिए उनसे वापस करवाएंगे। चीनी की कीमत अभी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 70 रुपए के ऊपर लेके आओ। चीनी की कीमत सस्ती हुई है, आवाम का फायदा। तो ये हर हद के ऊपर जाएंगे और ये हर जगह के ऊपर आपको ये माफियाज नजर आएंगे, आपको ये और भी बड़े बड़े ये जो कार्टेल्स बने हुए हैं, अभी उनके पीछे भी अब हम जाएंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मावन ख़ुसूसी और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास कैश प्रोग्राम के तहत सिंध को 60 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे सूबे के 50 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवामी खिदमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मिशन है। अरकान असम्बली अपने हल्कों में अवामी मसाइल का हल यकीनी बनाने में मुतहर्रिक किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली से गुफ्तगू में कही, जिन्होंने कराची में उनसे मुलाकात की। अरकान सूबाई असम्बली ने हालिया बजट तजावीज़, कोरोना वबा से निमटने के लिए हिकमत अमली और एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के इजरा पर वज़ीर-ए-आज़म को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने विफाक और सूबे के दरमियान रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए भी तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली ने भी मुलाकात की। इस दौरान मुल्क की सियासी और कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजी में इक़्तिदार में रहने वाली सियासी क़यादत ने अवामी खिदमत नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद की खातिर इक़्तिदार का इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PTI और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एजेंडा करप्शन का खात्मा, गुर्बत में कमी और अवामी खिदमत है। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत तमाम सूबों बशमूल सिंध के साथ हर मुमकिन ताउन कर रही है। इत्तेहादी जमातों के अरकान ने सूबा सिंध में तरक्याती कामों और इंतजामी इस्लाहात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कराची में MQM के वक्त ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाड़काना में एहसास इमरजेंसी कैश डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक एहसास कैश प्रोग्राम में सिंध का हिस्सा 22% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं शिराज अली से। वज़ीर-ए-आज़म एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के चौथे फेज का आगाज लाड़काना से हो गया है, जिसके तहत मुल्क भर से कोरोना की सूरत हाल और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होने वाले अफराद की हुकूमत की तरफ से माली मदद की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज लाड़काना में कैश इमरजेंसी सेंटर का दौरा किया और लोगों से मसाइल मालूम किए। वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख फैमिलीज को फीकस 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ 5 लाख अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मजीद 60 लाख लोगों की मदद की जाएगी, जिसमें बेरोजगार होने वाले मजदूर, दुकानदार, गैर सरकारी नौकरी करने वाले और तमाम वो मर्द और खवातीन शामिल हैं जो कि कोरोना की वजह से माशी तौर पर कमजोर हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव है, जो प्रोग्राम है, उसके तहत 1 करोड़ 20 लाख इनिशियली लोगों को जो है ना फैसिलिटेट करना था, जिसमें से 3.5 मिलियन यानी 45 लाख बेनिफिशरीज सिंध से बिलोंग कर रहे थे। उसमें से अगर मैं बात करूं तो कोई हम 31 लाख प्लस लोगों को हम अभी तक फैसिलिटेट कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के एहसास प्रोग्राम को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है, जिसके तहत लाखों अफराद में साफ शफाफ तरीके से माली इमदाद की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद 1 खरब रुपए से ज्यादा एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत लोगों में रकम तकसीम की है, जिससे मौजूदा हालात में लोगों को रिलीफ मिलेगा। शिराज अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाड़काना।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लाड़काना में PTI के कारकुनान ने मुलाकात की। कारकुनान ने वज़ीर-ए-आज़म के अंदरूनी सिंध का दौरा करने पर खुशी का इजहार किया और गरीब और मजदूर तबके की किफालत के लिए अंदरूनी सिंध में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के इजरा पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें अंदरूनी सिंध को लेकर मुश्किलात का पूरा एहसास है और इसी एहसास से महरूमी को कम करने के लिए उन्होंने लाड़काना का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सिंध और खुसूसन अंदरूनी सिंध में गुर्बत का इदराक करते हुए वफाकी हुकूमत ने एहसास कैश प्रोग्राम में सिंध के लिए इजाफी फंड मुख्तस किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कारकुनों को ताकीद की कि वो कोरोना वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से भरपूर मुहिम चलाएं। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अली गौहर खान महर ने लाड़काना में मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सिंध में कोरोना से बेरोजगार होने वाले अफराद की तादाद बाकी सूबों से ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि सिंध की आबादी मुल्क की आबादी का 22% है। PM रिलीफ फंड में सिंध से 32% अफराद ने दरखास्तें भिजवाईं। लाड़काना में फंड तकसीम के दौरान ज्यादातर छाबड़ी वाले अफराद देखे। रेहड़ी वालों का गुजारा रोजाना की आमदन की बुनियाद पर होता है। रेहड़ी वाले समाजी फासले की खिलाफ वर्जी नहीं करते, ताहम सिंध पुलिस छाबड़ी वालों को काम से रोक रही है। गवर्नर सिंध को छाबड़ी वालों के मसाइल पर वज़ीर आला से बात करने के लिए कहा है। भारतीय फौज की जानिब से एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी की गई है। DG ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के नक्याल और बाक्सर सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और दानिस्ता तौर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से एक खातून समेत 4 बेगुनाह शहरी शहीद जबकि एक जख्मी हो गया। पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का मौसर जवाब दिया। शहदा का ताल्लुक रत्ता जबर और लिबाना खैबर से है। नाज़रीन, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। अस्करी क़यादत ने कौमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया। फोरम ने मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल कमी और अफगान अमन अमल के बायस तवातर से मगरबी सरहद पर मुरतब होने वाले मुस्बत असरात पर इत्मीनान का इज़हार किया। अस्करी क़यादत ने भारत के जारहाना अज़ाइम का जायजा लिया और कहा कि भारत की मसमूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फोरम ने इस अज़्म का इज़हार किया कि भारत की जानिब से कश्मीर में बेगुनाह शहरियों के कत्ल को बेनकाब करते रहेंगे। अस्करी क़यादत ने टिड्डी दल, पोलियो और कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए कोशिशों में पाक फौज की जानिब से हुकूमत की फराहम की जाने वाली मदद और ताउन का जायजा लिया। फोरम ने कहा कि कोरोना को कौम बनकर ही शिकस्त दी जा सकती है, जिसके लिए इंफरादी सतह पर हर एक को अपना किरदार अदा करना और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाना होगा। देखती आंखों और सुनते कानों को पाकिस्तान के नामवर अदाकार और कंपेयर तारिक अजीज हमेशा के लिए अलविदा कह गए। पाकिस्तान टेलीविजन की पहचान और इब्तदाई आवाज खामोश हो गई। तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी में लाइक अहमद, हसन शहीद मिर्जा और ज़िया मुहियुद्दीन जैसी अजीम आवाज़ों के हम पल्ला तारिक अजीज सदाकारी की दुनिया से वाबस्ता हर फर्द के लिए उस्ताद का मुकाम रखते थे। उनकी फनी खिदमात के हवाले से देखते हैं हुमा सदफ की ये रिपोर्ट। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। पाकिस्तान की दुनियाई सदाकारी और टेलीस्क्रीन को एक बावकार, मालूमाती और सुलझा हुआ असलूब देने वाले तारिक अजीज दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं। शायराना शख्सियत, बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ और स्टेज पर उनकी तवानाई का कोई मुकाबला न था। उनकी शायराना तसनीफ हमजाद का दुख उनके जोरे कलम का नमूना है। कालम निगारी, सदाकारी और फिल्मों में अदाकारी के साथ 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन के आगाज पर पहले मर्द अनाउंसर होने का एजाज भी तारिक अजीज को हासिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खवातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में
पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को जालिंधर में पैदा हुए। उनके वालिद मियां अब्दुल अजीज 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर आए। तारिक अजीज ने इब्तदाई तालीम साहिवाल से हासिल की और रेडियो पाकिस्तान से अपनी पेशा जिंदगी का आगाज किया। 1975 में पीटीवी पर शुरू किए जाने वाला शो नीलाम घर उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। ये प्रोग्राम 4 दहाइयों तक जारी रहा। बाद में उसे बज़्म तारिक अजीज का नाम भी दिया गया। हमें तो ये सबक याद है कि अपना लिबास, अपनी जबान, अपनी सकाफत, अपना अदब, अपने लोग, ये हैं हमारा खजाना और इस खजाने की हिफाजत करनी चाहिए जिस उन्वान भी की जा सके। जाती जिंदगी में भी बतौर दोस्त और इंसान तारिक अजीज नफीस शख्सियत के मालिक थे। इस लम्हे उन्हें मरहूम कहना भी निढाल कर देता है। मैंने उनके साथ कई साल नीलाम घर और तारिक अजीज शो प्रोड्यूस किया। वो आलिम थे, उन्हें बेशुमार चीजों का इल्म था, बहुत सारी चीजों का इल्म था और उनको इतना अशार याद थे कि आज के लोग सोच भी नहीं सकते। वो फुटपाथ से उठे और पार्लियामेंट तक पहुंचे। ये एक दिलचस्प कहानी है, एक जद्दोजहद की, स्ट्रगल की, कोशिश की। तारिक अजीज को हुकूमत पाकिस्तान ने 1992 में हुस्न कारकर्दगी के तमगे से भी नवाजा। वतन अजीज को दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मकबूल तरीन टीवी मेजबान तारिक अजीज के इंतकाल पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज समेत दूसरी शख्सियात ने इजहार ताज़ियत किया है। मरहूम को लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। चेयरमैन टीटीवी अरशद खान और एमडी आमिर मंजूर की जानिब से मरहूम की कब्र पर फूल चढ़ाए गए। तफसीलात किंजा नकवी से। मिलने के नहीं नायाब हम, ताबीर है जिसकी हसरतों हो, ऐ हम नफ्सों हो हाल हैं हम। जनूबी एशिया की टेलीविजन स्क्रीन पर नमूदार होने वाले मारूफ कंपेयर तारिक अजीज हजारों मद्दाहों को सोगवार छोड़ गए। तारिक अजीज के इंतकाल पर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने उन्हें भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी मारूफ टीवी कंपेयर तारिक अजीज की वफात पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तारिक अजीज ने फन के शोबे में गरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। वजीर आजम इमरान खान ने मुमताज कंपेयर तारिक अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि तारिक अजीज टीवी गेम शोज के अव्वलीन मेजबान और इस शोबे में आइकॉन की हैसियत रखते थे। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी मारूफ मेजबान के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए उनकी फनी और समाजी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तारिक अजीज हमा जहर शख्सियत के हामिल होने के साथ साथ एक बाकमाल कंपेयर, आर्टिस्ट, शायर और अदीब थे। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि तारिक अजीज आला फनकाराना सलाहियतों के हामिल अदबी शख्सियत थे। उन्होंने दिहाइयों तक पीटीवी के जरिए आवाम को तालीम और तफरीह फराहम की। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि तारिक अजीज लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि फन की दुनिया में तारिक अजीज की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने भी तारिक अजीज के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तारिक अजीज दुनिया भर में पाकिस्तानी सकाफत के फरोग के लिए कोशा थे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी मारूफ टीवी कंपेयर के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तारिक अजीज अपने अदबी ज़ौक़ की वजह से अपनी ज़ात में अंजुमन थे। वो कंपेयरिंग के फन में भी अपनी मिसाल आप थे। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने भी अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि तारिक अजीज मारूफ एंकर और अनाउंसर होने के साथ साथ एक हमाजहत शख्सियत के मालिक थे। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मारूफ फनकार तारिक अजीज की वफात पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। आर्मी चीफ ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि मरहूम की पाकिस्तान के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने मरहूम के इसाले सवाब और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की। मौसमियाती तब्दीली की वजीर ममलिकत जरताज गुल ने कौमी असम्बली को बताया कि अवाम की मुश्किलात का इदराक करते हुए बजट 2020 और 21 में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। आबी बहरान पर काबू पाने के लिए बजट में 69 अरब मुख्तस किए गए हैं। कौमी असम्बली के इजलास की तफसीलात मियां मोहम्मद सनी से।
قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ بجٹ 2020-21 پر عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت زرتاج گل نے کہا کہ موجودہ بجٹ میں سماجی شعبے اور نادار طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت نے بجٹ میں زیادہ فنڈ مختص کیے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں اتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، انہوں نے اس بجٹ میں فرمایا کہ میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں مزدور کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں نیا کوئی بھی ٹیکس نہیں لگنے دوں گا۔ تو اس بجٹ کے اندر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ احساس پروگرام جو ایک غریب کا پروگرام ہے، جو ایک نادار کا پروگرام ہے، مزدور کا پروگرام ہے، بیواؤں کا پروگرام ہے، ایک کسان کا پروگرام ہے، جو کہ 180 ارب تھا، اس کو 805 ارب کر دیا گیا۔ صنعتوں اور پیداوار کی پارلیمانی سیکرٹری عالیہ حمزہ ملک نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے سے استحکام کی طرف گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا بجٹ عوام دوست بجٹ ہے۔ یہ کووڈ-19 سے لڑنے کا بجٹ ہے، یہ دہاڑی دار کا بجٹ ہے، یہ میرے فرنٹ لائنرز کے تحفظ کا بجٹ ہے، یہ ان مستحقین کا بجٹ ہے جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو روزی روٹی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ملی، یہ ان بے روزگاروں کے لیے روزگار دینے کا اور بے روزگاری الاؤنس دینے کا بجٹ ہے۔ اگر میں یہ بتاؤں تو 75 جو ارب ہے وہ صرف ڈیفر کرنے کے لیے بجلی اور گیس کے بلوں کے لیے دیا گیا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے حکومتی ارکان نے کہا کہ مشکل معاشی صورتحال کے باوجود بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کیا گیا ہے۔ بجٹ میں صحت اور تعلیم کے شعبے کے لیے خطیر فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں مواصلات اور آبی وسائل پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپوزیشن ارکان کا کہنا تھا کہ بجٹ میں زراعت کے شعبے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ حکومت زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے اور عام آدمی کو اس مشکل صورتحال میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گیا ہے۔ میاں محمد سمیع، PTV نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، سینٹ میں ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں ترمیمی بل 2020 کی منظوری کی تحریک کثرت رائے سے منظور کر دی گئی۔ سینٹ اجلاس میں دوسرے روز بھی وفاقی بجٹ پر بحث جاری رہی۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا شہزاد الاسلام سے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ سینیٹر میاں محمد عتیق نے ایوان میں ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں ترمیمی بل 2020 کے حوالے سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی رپورٹ پیش کی، جس کے بعد انہوں نے قائمہ کمیٹی کی رپورٹ میں پیش کی جانے والی سفارشات منظور کرنے کے حوالے سے تحریک پیش کی، جو کثرت رائے سے منظور ہو گئی۔ صنعت و پیداوار کے وفاقی وزیر حماد اظہر نے تحریک کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہر رکن پارلیمنٹ کو پہلے ہی بزنس کلاس کے 25 ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، مزید مراعات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اجلاس میں وفاقی بجٹ پر جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے سینیٹر جاوید عباسی، مولانا عبدالغفور حیدری، سینیٹر اورنگزیب، سینیٹر سسی پلیجو، سینیٹر کلثوم پروین، سینیٹر منظور کاکڑ، سینیٹر مشتاق احمد، سینیٹر محمد اکرم اور سینیٹر گیان چند نے کہا کہ پاکستان کے مسائل کا حل صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے میثاق معیشت وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی قیادت مل کر میثاق معیشت کو آئینی تحفظ دے۔ عوام کی معاشی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قومی مالیاتی ایوارڈ کے تحت بلوچستان، خیبر پختونخوا اور ضم ہونے والے قبائلی علاقوں کے فنڈز میں آئین کے تحت اضافہ کیا جائے۔ ارکان نے مطالبہ کیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں بھی اضافہ کیا جائے۔ سینٹ کا اجلاس بروز جمعہ صبح 10 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ رانا شہزاد الاسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، صوبہ سندھ کا آئندہ مالی سال 2020-21 کا 12 خرب 41 ارب روپے سے زیادہ کا مالیاتی بجٹ صوبائی اسمبلی میں پیش۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث انتہائی مشکل حالات میں متوازن بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد زبیر الدین۔ بجٹ تقریر کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں بجٹ کا تخمینہ 12 خرب 41 ارب 12 کروڑ روپے لگایا گیا ہے، جبکہ بجٹ میں مجموعی خسارہ 18 ارب 38 کروڑ روپے ہے اور غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 9 خرب 86 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 2232 ارب روپے ہے، جبکہ کیپٹل اخراجات کا تخمینہ 39 ارب 19 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔
सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि बजट में कुल टैक्स वसूली का हदफ 313 अरब रुपए है, जबकि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए बजट में ग्रेड 1 से 16 तक 10% तनख्वाह में इजाफा, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन के लिए 5% इजाफा रखने की तजवीज है। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गैर तरक्याती अखराजात में इजाफे की बुनियादी वजह कोरोना वायरस है, जबकि कोरोना के लिए 4 अरब 20 करोड़ रुपए अलहदा से मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी शोबे के बजट में 22 अरब 9 करोड़ रुपए का इजाफा रखने की तजवीज है, जबकि बजट में 2245 अरब रुपए तालीम के शोबे के लिए रखे गए हैं। सेहत के शोबे का जिक्र करते हुए वजीर आला ने कहा कि सेहत के लिए 244 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि ज़राअत के लिए 14 अरब 80 करोड़ रुपए रखने की तजवीज है, जबकि हुकूमत सिंध ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए 44 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों का तखमीना 117 अरब रुपए है। बजट में प्रॉपर्टी, मोटर व्हीकल, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, कॉलिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए टैक्सों की अदायगी में इस्तिस्ना करने की भी तजवीज रखी गई है। KCR रूट के साथ रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज की तामीर, BRTS और ऑरेंज लाइन 4 किलोमीटर राहदारी, ग्रीन लाइन के लिए 3 अरब रुपए रखने की तजवीज मुख्तस की गई है। महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 14.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमे बल्दियात के लिए 78 अरब रुपए, समाजी बहबूद के लिए 27 अरब रुपए, अक़लियतों के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए, आबपाशी के लिए 20 अरब रुपए रखे गए हैं। आइंदा माली साल में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 9 करोड़ रुपए की लागत से मुलाजमत पेशा खवातीन को स्कूटी फराहम करने की तजवीज रखी गई है। इससे पहले सिंध काबीना के इजलास में माली साल बजट 2020-2021 की बजट तजावीज की मंजूरी दी गई। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज तहकीक के दायरेकार में अपनी वुसअत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए अपने अहदाफ का असर-ए-नौ तयन करे। सदर ममलिकत ने यह बात इंस्टीट्यूट के कायम मकाम सदर नजीम रियाज से कही, जिन्होंने ऐवान सदर इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। सदर ममलिकत ने कहा कि तहकीक के शोबे में इलाकाई और बैनुल अक़वामी इदारों और थिंक टैंक्स के साथ रवाबित और ताउन को मजबूत बनाने की जरूरत है। तहकीक के मकासद हासिल करने के लिए इंस्टीट्यूट के चार्टर को बेहतर बनाने की हिदायत की। इंस्टीट्यूट के कायम मकाम सदर नदीम रियाज ने सदर ममलिकत को प्रेजेंटेशन दी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि चंद गुमराह कुन अनासिर सीपैक मंसूबों में सुस्त रवि का गलत तासुर दे रहे हैं, जबकि हाल ही में मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज की गई है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सीपैक के दूसरे मरहले पर काम भरपूर तरीके से जारी है। $3.5 अरब के पन बिजली के मंसूबों पर भी काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। चेयरमैन सीपैक ने कहा कि $17 अरब 20 करोड़ के ML1 मंसूबे पर भी काम जारी है। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पंजाब में टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए 10 करोड़ रुपए, ज़लज़ला तामीर नौ और बहाली अथॉरिटी की काबिल अदा रकम की बुक वैल्यू एडजस्टमेंट की मंजूरी दी गई। कमेटी ने पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री की तस्वीराती मनसूबाबंदी डिवीजन को मुंतकली की भी मंजूरी दी। पाकिस्तान में मजीद 5,839 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 136 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,54,760, जबकि हलाकतों की तादाद 2,975 है। अब तक 58,437 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 58,239 है। सिंध में 57,868, इस्लामाबाद में 9,242, बलूचिस्तान में 8,437 और खैबर पख्तूनख्वा में 19,107, गिलगित बल्तिस्तान में 1,164 और आजाद कश्मीर में 703 है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 28,117 नए टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 58,437 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा है कि सूबों की मुशावरत से बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए नई पॉलिसी वज़ा कर रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। जिन मुसाफिरों में कोरोना अलामात होंगी उन्हें करंटीना किया जाएगा।
جو پاکستانی سمندر پار پاکستانی باہر پھنسے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کا جو سلسلہ ہے اس کی اپڈیٹس ہم آپ کو نیشنل کمانڈ سینٹر سے دیتے رہے ہیں. ایک بڑا فیصلہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, وزیر اعظم پاکستان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جتنا جلد محفوظ طریقے سے ہو سکے تمام پاکستانیوں کو واپس لائیں گے. آپ کے سامنے میں اور زلفی بخاری صاحب وہ فیصلہ رکھ رہے ہیں جس سے انشاءاللہ بہت جلد جو باقی پاکستانی باہر ہیں اور خاص طور پہ ہمارا مزدور طبقہ جس کی بیسس پہ وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ پاکستان واپس آ سکے گا. ایئرپورٹ پہ پیسنجرز آئیں گے, ایئرپورٹ پہ ان کا تھرمل سکین اور ان کا بخار کا چیک کیا جائے گا. جو لوگ ٹھیک ٹھاک آئیں گے, کوئی سمٹم نہیں ہے, وہ گھر جائیں گے لیکن 14 دن کی قرنطینہ میں جائیں گے. معاون خصوصی ذوالفقار بخاری نے کہا کہ 1 ماہ میں بیرون ملک پھنسے تمام پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 18 ماہ میں 9,80,000 پاکستانی بیرون ملک روزگار کے لیے گئے. میں خاص طور پہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو پاکستان کی مدد کر رہے ہیں, اپنے فیملیز کے لیے پیسے یہاں بھیج رہے ہیں. حکومت پاکستان اوورسیز کی منسٹری ایک انٹیگریشن پروگرام آپ کے لیے بنا رہے ہیں کہ جب آپ لوگ واپس آئیں رجسٹر کریں OEC کے ویب سائٹ پہ کہ آپ لوگوں کی نوکری کیا تھی, آپ کا اسکل سیٹ کیا تھا. جن کی نوکریاں ٹرمینیٹ ہو گئی, ختم ہو گئی, ان کو پہلا ہفتے واپس آنے کے لیے پہلے ہفتے میں 25% انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ٹوٹل ایئر اسپیس کھولنے کی. عالمی ادارہ صحت اور وزارت صحت کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر اسلام آباد میں دستخط ہوئے. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ NCOC میں روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو عالمی ادارے صحت کی یونٹی اسٹڈی میں شامل کیا گیا ہے. کرونا وائرس کے تشویشناک مریضوں کے علاج کے لیے حکومت نے آغا خان یونیورسٹی کی شراکت داری سے ٹیلی کنسلٹیشنز اور ICU سہولیات کے حوالے سے ٹریننگ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ معاہدے کے تحت یونیورسٹی کی جانب سے ملک بھر میں COVID-19 کے حوالے سے ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو ٹریننگ دی جائے گی. ان اے ویری شارٹ ٹائم ہم لوگوں نے ایک ایسا نیشنل لیول کا پروگرام بنا لیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم کرٹیکل کیئر مینجمنٹ جو ہے پاکستان میں اس وقت COVID-19 کے حوالے سے اس کو سپورٹ دے سکیں گے مل جل کے. ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے جو ایکسپرٹس ہیں بیٹھے ہوئے فی الوقت صرف کراچی میں, لیکن ارادہ یہ ہے کہ یہ سینٹرز ہم اور جگہوں پہ بھی بنائیں گے پاکستان میں, تو وہ ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے گائیڈ کر سکیں گے ہمارے ڈاکٹرز کو, نرسز کو اور پیرامیڈکس کو کہ آپ نے پیشنٹ کو کیسے بہتر طریقے سے مینیج کرنا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار کی سربراہی میں لاہور میں اجلاس میں ٹائیگر فورس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے حکمت عملی طے کی گئی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں خصوصی شرکت کی. اجلاس میں اگلے 2 ماہ کے دوران کرونا وائرس کی روک تھام کے ساتھ متوقع سیلاب, پرائز کنٹرول اور شرکاری مہم کے لیے بھی ٹائیگر فورس کی ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا. معاون خصوصی نے کہا کہ ٹائیگر فورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے رضاکاروں اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان روابط کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کراچی میں کرونا مریضوں کے لیے مختص ہسپتالوں کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق سندھ کو درکار تمام سامان مہیا کیا جا رہا ہے. 70 ICU وینٹیلیٹرز اپنے ساتھ لایا ہوں. NDMA 382 بیڈز کا تمام سامان آکسیجن سسٹم سمیت مہیا کر رہا ہے. مزید 72 ICU وینٹیلیٹرز والے بیڈز بھی ان میں شامل ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہ سامان اگلے 10 سے 15 دن میں سندھ حکومت کے حوالے کیا جائے گا. صوبوں نے مختلف علاقوں میں ٹریکنگ, ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی حکمت عملی کے تحت اسمارٹ لاک ڈاؤن اور اقدامات سے متعلق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو آگاہ کیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں صحت کے رہنما اصولوں کی 9,827 دفعہ خلاف ورزیاں دیکھی گئیں. 900 سے زیادہ مارکیٹیں, دکانیں, 18 صنعتیں اور 1,186 گاڑیاں بند کر دی گئیں یا انہیں جرمانے کیے گئے. حکمت عملی کے تحت پنجاب میں 904 اور سندھ میں 36 مقامات پر اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں 572 اور آزاد کشمیر میں 29 جبکہ اسلام آباد میں 10 اور گلگت بلتستان میں 5 مقامات پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے.
वजारत दाखिला ने कोरोना वायरस के बायस हिफाजती इक़दामात के तौर पर सरकारी दफातर में समाजी फासले को लाजमी करार दे दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 जून से तमाम वजारतों और डिवीजन में समाजी फासले की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। सरकारी दफातर में 50% मुलाजिमीन को रोटेशन की बुनियाद पर बुलाया जाए। दफातर में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। जिन मुलाजिमीन में बीमारी की अलामात हों वो घर से काम करें। कोरोना खतरे के पेश नज़र इस्लामाबाद के सेक्टर I-8, 3, 4 और I-10, 1, 2 को रात 12 बजे से सील कर दिया गया है। इस सिलसिले में DC इस्लामाबाद की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ताहम फार्मेसी, अशाए खुरनोश, हंगामी और बुनियादी खिदमात इससे मुस्तस्ना होंगे। शहरियों से अपील की गई है कि वो राशन और दवाओं का मुनासिब इंतजाम कर लें। DC इस्लामाबाद के मुताबिक सेक्टर I-8 में कोरोना के 200 जबकि सेक्टर I-10 में 400 केसेस रिपोर्ट हुए थे। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के कोरोना से शदीद मुतासरा इलाकों को सील करने के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से देखते हैं नवीद हयात की रिपोर्ट। कोरोना की वबा के मजीद फैलाव को रोकने के लिए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के 80 से जायद इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। इन इलाकों में रहाइश पजीर अफराद को सिर्फ इंतहाई जरूरत के तहत घरों से बाहर आने की इजाजत होगी, जबकि मेडिकल स्टोर्स और अशिया खुर्दोनोश की दुकानों के अलावा तमाम कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। ये गली मुकम्मल तौर पर सील की है, ना कोई बाहर आ रहा है ना कोई बाहर से जा रहा है। ऊपर से SOPs के जितने भी हकामात उन पे पूरा अमल दरामद किया जा रहा है। अब जो है ना जो केसेस निकले थे उनकी वजह से बिल्कुल जो है ना बंद कर दी गई है। कोई बाहर नहीं आ रहा, कोई अंदर नहीं जा रहा मास्क के बगैर। लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दीगर अफसरान ने सील किए जाने वाले तमाम इलाकों का दौरा किया और SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। जिला इंतजामिया ने लाहौर के गिरदोनवाह में कायम कारखानों में भी SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया और मास्क, हैंड सैनिटाइजर और समाजी फासले की पाबंदियों को नजरअंदाज करने पर 3 फैक्ट्रियों को सख्त वार्निंग जबकि 1 फैक्ट्री के मरकजी दफ्तर को सील कर दिया गया है। पंजाब में पिछले 24 घंटों के दौरान 2361 नए केसेस के साथ कोरोना के मुतासर अफराद की कुल तादाद 58,239 हो गई है, जबकि अब तक 17,700 से ज्यादा मुतासर अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना की चैलेंज से निपटने के लिए अवाम का ताउन बेहद जरूरी है। शहरी एहतियाती तदाबीर अपना कर खुद और अपने प्यारों की जिंदगियों को महफूज बना सकते हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हुकूमत कोरोना की वबा के तदारुक के साथ साथ सूबे में तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील, कारोबारी सरगर्मियों के फरोग और बदउनवानी के खात्मे के लिए अमली कोशिशें कर रही है। तफसीलात शुमाइला शबीर की रिपोर्ट में। अटक, रावलपिंडी, जेहलम और पंजाब के दीगर इजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली से लाहौर में बातचीत करते हुए वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना वबा के बाइस सूबे की मईशत मुश्किलात का शिकार है। ताहम मसाइल के बावजूद तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार को मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि 11.5 अरब रुपए की लागत से सूबे में नए ज़चौ बच्चा अस्पताल कायम किए जाएंगे, जबकि 16 इजला में 32 अरब रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट और निकासी आब के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। लाहौर से जारी एक बयान में वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत कब्जा माफिया के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और इस सिलसिले में सूबे भर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। वजीर आजम के मुआवनी खुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार की सरबराही में लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें टाइगर फोर्स की खदमात से ज्यादा फायदा उठाने के लिए हिकमत अमली तय की गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में खुसूसी शिरकत की। इजलास में अगले 2 माह के दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम के साथ साथ मुतवक्के सैलाब, प्राइस कंट्रोल और शजरकारी मुहिम के लिए भी टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों का तयन किया गया। लाहौर में पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असम्बली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। वीडियो लिंक इजलास के दौरान बजट सेशन के दौरान असम्बली में कवायद व ज़वाबित पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने हिदायत की कि असम्बली के इजलास के दौरान कोरोना SOPs पर भी मुकम्मल अमल दरामद के लिए इकदाम किए जाए। शुमाइला शबीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि तर्जुमान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजती सामान की 8वीं खेप में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अस्पतालों को सामान इरसाल किया गया है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक सामान में 3,06,000 मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल और फेस मास्क, 50,700 हिफाजती सूट, 1,50,000 सर्जिकल गाउन, 15,000 हिफाजती कैप्स,
30,000 शूज कवर और 65,000 हिफाजती एनकें सूबों को दी गई हैं। तर्जुमान NDMA का कहना है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पहले ही ज़रूरत के मुताबिक सामान दे दिया गया है, जबकि सिंध को 70 मजीद ICU वेंटिलेटर भी अरसाल किए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जेलों में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की जिंदगी को लाहिक खतरे पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी बयान में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम कश्मीरियों की रिहाई का मुतालबा किया और कहा कि नजरबंदों में से कई ज़ईफ उल उम्र हैं या फिर सेहत के मसाइल से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि मलिक मोहम्मद यासीन, शबीर अहमद शाह, आसिफ इंद्राबी, मुसरत आलम भट्ट, डॉक्टर मोहम्मद शफी शरीयती, मियां अब्दुल क़य्यूम, डॉक्टर मोहम्मद कासिम फक्तो, नईम अहमद खान, अल्ताफ अहमद शाह, अयास मोहम्मद अकबर, पी सैफुल्लाह और राजा महराजुद्दीन कुलवाल समेत हजारों कश्मीरी इस वक्त नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मकबूजा कश्मीर की जेलों में हैं। हुर्रियत रहनुमा बिलाल सिद्दीकी और मोहम्मद शफी नून ने श्रीनगर में अपने बयानात में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी से मंसूब सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले बास जाली खतूत पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि इस मज़मूम अमल को कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत को बदनाम करने के लिए खुफिया भारतीय एजेंसियों की कारस्तानी है। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी अज़्म, हिम्मत, साबिक़ कदमी, दूरअंदेशी और मज़ाहमत की अलामत है। मीरवाइज़ उमर फारूक की सरपरस्ती में कायम हुर्रियत फोरम ने श्रीनगर से जारी एक बयान में बच्चों पर तशद्दुद के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का खैर मक़दम किया है, जिसमें आलमी इदारे ने मकबूजा कश्मीर में बच्चों के खिलाफ ताकत के मुसलसल इस्तेमाल पर तशवीश का इज़हार किया है। हुर्रियत फोरम ने कहा कि रिपोर्ट में मकबूजा इलाके में भारतीय फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान बच्चों की गिरफ्तारी, कत्ल और मासूर बनाए जाने की तस्दीक की गई है। श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस में मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की गई, जिसमें श्रीनगर में मुख्तलिफ मजहबी मकामात पर हालिया हमलों की मजम्मत की गई। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम अंजुमन शरई शियान ने किया था। करारदाद में मफाद परस्त अनासर के मज़मूम मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए तमाम फ़िरक़ों के दरमियान इत्तेहाद पर जोर दिया गया। नाज़रीन, दुनिया भर में अब तक कोरोना वबा से मुतासर अफराद की तादाद 83,39,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 4,50,000 के करीब है। 43,63,000 मरीज वबा को शिकस्त दे चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 22,21,000 से जायद है, जबकि 1,19,000 से जायद हलाकतें हो चुकी हैं। ब्राजील हलाकतों के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया है, जहाँ मरने वालों की तादाद 45,000 से ज्यादा हो गई है। बरतानवी साइंसदानों ने दावा किया है कि कोरोना जैसे मोहलिक वायरस के खिलाफ जंग में कमी मकदार वाली स्टीरॉइड्स डेक्सामेथासोन से कामयाब इलाज मुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस से शदीद बीमार मरीजों की जिंदगी एक सस्ती और वसी पैमाने पर दस्तयाब दवा से पाई जा सकती है। नाज़रीन, मुल्क भर में इंसदाद टिड्डी दल मुहिम जारी है। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की 972 मुश्तरका टीमें मुल्क के मुखालिफ अजला में टिड्डी दल के खिलाफ भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। 42 अजला के मुतासरा इलाकों में मुहिम जारी है। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक अब तक 30,21,057 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर सर्वे किया जा चुका है, जबकि 8,265 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में कंट्रोल ऑपरेशन किया गया है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हबीब शेख की सदारत में इस्लामाबाद में आला सतह इजलास में गंदम और आटे की सूरत हाल और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गंदम और आटे की कीमतों में हालिया इजाफे की वजूहात का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन, मुशीर इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन, मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, वज़ीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान और दूसरे हुकाम ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत गंदम और आटे की कीमतों को काबू में रखने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ। वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी और मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी शरीक हुए। वजीर दाखिला ने कहा कि कुर्बानी एक मजहबी फरीजा है और हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन सहूलत यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि इंतजामात के साथ हिफाजती तदाबीर पर अमल के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है।
वजारत खारिजा को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने और मजबूत बयाने की तरवीज के लिए वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत पब्लिक डिप्लोमेसी के हवाले से इजलास हुआ। वजीर तालीम शफकत महमूद, वजारत खारिजा के साबिक और हासिल सर्विस अफसरान समेत पब्लिक डिप्लोमेसी मुशावरती ग्रुप के दीगर मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। वजीर खारिजा ने कहा कि आज डिजिटल मीडिया इंसानी जिंदगी में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। ऐसे वक्त में पब्लिक डिप्लोमेसी की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने वजारत खारिजा में गुज़श्ता बरस विजन FO का आगाज किया और पब्लिक डिप्लोमेसी को बरोकार लाते हुए बहुत से अहदाफ कामयाबी के साथ हासिल किए। वजारत खारिजा की नई वेबसाइट मुतारिफ कराई। बलूचिस्तान के गवर्नर अमानुल्लाह खान से सूबाई वज़ीर खजाना मीर ज़हूर बरेदी ने क्वेटा में मुलाकात की। इस दौरान 20 जून को पेश किए जाने वाले सूबाई बजट के अलावा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने कहा कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान को दीगर सूबों के बराबर लाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूएकार ला रही है, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। CPEC जैसा गेम चेंजर मंसूबा पाकिस्तान और खित्ते में खुशहाली की नवीद साबित होगा। नाज़रीन, फाइनेंस बिल 2020 में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक अरकान सेनेट की सिफारिशात के हवाले से कायमा कमेटी मनसूबाबंदी का इजलास चेयरमैन कमेटी आगा शाहजेब दुर्रानी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। मनसूबाबंदी के वज़ीर असद उमर ने बताया कि अनकरीब एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें अरकान कौमी असम्बली के साथ साथ अरकान सेनेट को भी शामिल किया जाएगा। ये कमेटी अमल दरामद का जायजा लेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में 18 जून को पिकनिक का दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद और अहमियत के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे इर्द गिर्द के कुदरती मनाजिर, फितरत की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने और अपने प्यारों से मिलकर वक्त गुजारने, खाने पीने और घूमने का नाम पिकनिक है। पिकनिक एक सेहतमंद सरगर्मी और तफरी का नाम है। पिकनिक का आलमी दिन मनाने का मकसद फितरत से मेल जोल और दोस्तों के हमराह लुत्फानंदोज होने के लिए लोगों को मसरूफ जिंदगी से वक्त निकालकर घूमने फिरने के लिए जाने की तरफ राग़िब करना है। अपने अहले खाना के साथ शहर के हंगामों से दूर किसी मकाम पर तफरी के लिए लोग खूबसूरत सियाहती मकामात, सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों और समंदर का रुख करते हैं। पिकनिक अपनों के साथ वक्त गुजारने का एक बेहतरीन जरिया है, मगर कोरोना की मौजूदा सूरत हाल की वजह से सियाहती मकामात बंद हैं। लोग घरों में महसूर हैं और ऐसे में छोटे बच्चे पार्कों में घूमने और खेलने को बहुत मिस कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई माह से तफरी गाहों, पब्लिक पार्क्स और ज्यादा रश वाली जगहों पर जाने पर भी पाबंदी है। हर कोई मुंतजिर और दुआगो है कि कब कोरोना की वबा खत्म हो और घरों तक महदूद लोग बाहर निकलकर फितरत से लुत्फानंदोज हो सकें। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, ज़ेरी, खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्म रहेगा। ताहम शिमाल मशरक़ी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के पहले ऑनलाइन बॉक्सिंग टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। टूर्नामेंट में मुल्क भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ऑनलाइन फिटनेस एंड शैडो बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 3 कैटेगरीज के मुकाबले हो रहे हैं, जिनमें खिलाड़ी अपनी शैडो बॉक्सिंग और फिटनेस एक्सरसाइज की वीडियोज के साथ शिरकत कर रहे हैं। कोरोना के बायस महदूद सरगर्मियों की वजह से मुनक्किद होने वाला ऑनलाइन टूर्नामेंट 22 जुलाई तक जारी रहेगा। जीतने वाले खिलाड़ियों का ऐलान बॉक्सिंग फेडरेशन के तैनात करदा रेफरीज और ऑफिशियल्स करेंगे।
وزیر توانائی عمر ایوب اور معاون خصوصی ندیم بابر سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے وفد نے غیر رسمی ملاقات کی۔ وفد کی قیادت کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ہیڈ کوچ مصباح الحق کر رہے تھے۔ وفد میں محمد حفیظ، یاسر شاہ، اظہر علی اور توفیق عمر شامل تھے۔ وفاقی وزیر عمر ایوب اور معاون خصوصی نے کھلاڑیوں کی ملکی کرکٹ کے فروغ اور اعلیٰ کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ پوری قوم کو اپنے کھلاڑیوں پر فخر ہے۔ کھلاڑیوں نے وزیر توانائی اور معاون خصوصی کی ستائش اور نیک خواہشات پر شکریہ ادا کیا۔ پنجاب کے صوبائی وزیر کھیل نے قومی کرکٹر فہیم اشرف کی درخواست پر پھول نگر میں کرکٹ گراؤنڈ کی حالت زار پر نوٹس لیتے ہوئے انکوائری رپورٹ کا حکم دے دیا ہے۔ صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی اور فہیم اشرف کے درمیان ملاقات میں قومی کرکٹر نے ان کی توجہ کرکٹ گراؤنڈ کی خستہ کی طرف مبذول کرائی تھی۔ صوبائی وزیر کھیل نے فوری نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ افسران کی کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور انکوائری رپورٹ میڈیا کے سامنے بھی پیش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ کو اصل حالت میں بحال کروایا جائے گا۔ وزیر کھیل نے صوبے میں موجود کھیلوں کے تمام کمپلیکس اور گراؤنڈز کے حوالے سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ جرمن فٹ بال لیگ میں بائرن میونخ کی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ دوسری جانب پیڈر بورن کی ٹیم یونین برلن کے ہاتھوں شکست کے بعد ریلیگیشن کا شکار ہو گئی۔ برلن میں کھیلے گئے میچ میں یونین برلن نے پیڈر بورن کو 1 گول سے مار دے دی۔ میچ کا واحد گول کھیل کے 27ویں منٹ میں پیڈر بورن کے بین زولینسکی نے میزبان کی۔ شائقین کے بغیر اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے بھی دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ بارسلونا میں کھیلے گئے میچ میں میزبان بارسلونا نے لیگانیز کو 2 گول سے ہرا دیا۔ میچ پر بارسلونا کی ٹیم مکمل طور پر چھائی رہی اور زیادہ تر کھیل لیگانیز کے ہاف میں کھیلا گیا۔ 42ویں منٹ میں بارسلونا کی طرف سے انسو فاتی نے پہلا گول کیا۔ یہ 17 سالہ فٹ بالر کا رواں سیزن کا 5واں گول تھا۔ 69ویں منٹ میں لیونل میسی نے پینلٹی پر گول کر کے اپنی ٹیم کو 2-0 سے کامیابی دلائی۔ اس فتح کے ساتھ ہی بارسلونا کو نزدیک ترین حریف ریال میڈرڈ پر 5 پوائنٹس کی واضح برتری حاصل ہو گئی ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ آج سے بحال ہو رہی ہے۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث 100 روز تک معطل رہنے کے بعد لیگ کے پہلے میچ میں آسٹن ولا اور شیفیلڈ یونائیٹڈ کی ٹیمیں برمنگھم میں مد مقابل ہوں گی۔ لیگ کے بقیہ 92 میچز 40 روز کے اندر کھیلے جائیں گے اور سیزن 26 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا۔ تمام میچز تماشائیوں کے بغیر کھیلے جائیں گے اور فرنٹ لائن پر موجود نیشنل ہیلتھ سروسز اسٹاف کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مینڈس کی طرف۔ بہت بہت شکریہ انیس، اور اسی کے ساتھ ہی بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کورونا وائرس ایک وبائی مرض ہے جو بڑی شدت سے پھیل رہا ہے اور اس کے تدارک کے لیے ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے۔ جہاں حکومت وقت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہہ رہی ہے، وہاں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اسی طرح مفتیان کرام، علماء کرام اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور جہاں جس حد تک وہ اجازت دے رہے ہیں اسے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنا جو ایک والنٹریلی کردار ہے اس کے کردار کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اسی ضمن میں اپنے تمام سالکین، اپنے تمام ممبران کی طرف سے یہ بات اپنی گورنمنٹ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سارے والنٹریلی حاضر ہیں۔ جہاں کبھی جس جگہ ضرورت پڑے، جہاں اناؤنسمنٹ ہوگی، ہم وہاں حاضر ہوں گے۔ اور یہی بات میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے، تمام اہل وطن سے عرض کروں گا، آئیں چھوٹے چھوٹے اختلافات اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیر بحث نہ لائیں، قومی اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وبا کو شکست دیں اور انشاءاللہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اس بلا سے چھٹکارا عطا فرمائے۔